A very good morning to everyone. So we are there with this new chapter number 6, dissolution of partnership. So first we're going to see the meaning of dissolution. So what dissolution? Now in legal terms, dissolution has multiple meaning. When we talk about legal terms, it has multiple meaning. Okay, when business relation among the partners in a partnership firm comes to an end, it is known as dissolution of partnership. क्या होता है dissolution of partnership? जब business relation, जो business का relation होता है amongst the partner, ठीक है, जो भी partners हैं उनके बीच में जो business relation होता है partnership firm में, when it comes to an end, it is known as dissolution of partnership. That's the one meaning. When one or more partner or partners take decision to close the partnership firm, it is all known as dissolution of partnership firm. ठीक है, या तो एक या एक से ज्यादा पार्टनर डिसाइड करते हैं that they will going to close the partnership firm, then it is also known as dissolution of partnership firm. Or when all partners decide to discontinue from partnership firm, so the result will be dissolution of partnership firm. Okay, so जो dissolution है, it can be amongst the partner. It's basically a breakdown of the relationship amongst the partner in the partnership firm. Okay, or we can say it's a decision which is taken by the partner that they do, by some partners that they don't want to continue the business. Okay, and they take the decision to close the partnership firm, and it is also called as dissolution of partnership firm. Or where when all the partners they decide to discontinue the partnership firm. Okay, so it also results in dissolution of partnership firm. Okay, अब ये जो word है dissolution, ये आया कहाँ से है? ये word dissolution had came from the Latin word dissolution, which means dissolving of something. ठीक है, dissolving of something. ठीक, कोई भी चीज जब dissolve हो जाती है, that is called as dissolution. Now dissolution is the last stage of closure of business. Dissolution क्या है? ये last stage है कोई भी business closure के process में. ठीक है, dissolution means, so अगर हम simple words की बात करें, simple meaning की बात करें, तो dissolution का मतलब क्या होता है? It means to wind up or to close down. Okay, it means to wind up or to close down. So any partnership firm, if it's closed down, any partnership firm, whether if it's wind up, then that is called as dissolution. Okay, but it should be according to the or as per the partners who are there in the partnership firm. Either some partners they will going to decide to close the partnership firm, or either all partners they decide to discontinue the partnership firm. In both the cases, the result will be dissolution of partnership firm. Is it clear? Meaning? Okay, now the next, now what are the reasons for dissolution of partnership firm? एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के, एक पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप होने के, बंद होने का रीजन क्या है? फर्स्ट है बाय वॉलंटरी एक्ट ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ. जो पार्टनर्स है वो खुद चाहते हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर दें. ठीक है, सो दैट्स वन ऑफ द रीजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सेकेंड, व्हेन द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एक्सपायर्ड. ठीक है, जो भी पार्टनरशिप डीड है उसके एग्रीमेंट में लिखा है कि वी विल गोइंग टू डू दिस पार्टनरशिप ओनली फॉर 1 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर्स, जो भी है. तो वो जो टाइम पीरियड है जब वो खत्म हो जाता है, तो आफ्टर दैट द पार्टनरशिप फर्म इट गेट्स डिसॉल्व्ड. ओके, नेक्स्ट, partnership can be dissolved after the completion of specific venture for which it was formed. Okay, एक particular जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, पार्टनरशिप किया था, और जैसे वो जॉब खत्म हो गया वैसे ही ये पार्टनरशिप अपने आप क्या हो गया, खत्म हो जाएगा. तो देयर विल बी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ओके, नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन रिजल्ट्स इनटू डिसोल्यूशन. अगर देयर इज एन इंसॉल्वेंसी, ठीक है, जो भी पार्टनर्स है वो इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, व्हिच मींस देयर लायबिलिटीज आर मोर देन देयर एसेट्स. In that case also there is a dissolution of partnership firm.
इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है, बिजनेस एक्टिविटी पार्टनरशिप फॉर्म कर रहा है जो इलीगल है या अनलॉफुल है, तो इन दैट केस आल्सो देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. And the last is partnership at will can be dissolved by giving notice of 14 days. ठीक है, if some of the partners they don't want to continue this partnership firm, ठीक है, तो in that case they can send a 14 days notice, okay, and as after that there might be resolution of the partnership firm. So these are some reasons जिसके वजह से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है. इज इट क्लियर? कभी वॉलंटरी होती है, कभी टाइम पीरियड के हिसाब से होती है, कभी स्पेसिफिक वेंचर खत्म होने पर होती है, कभी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर की वजह से होती है, कभी इलीगल या अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने की वजह से होती है, और कभी एट विल होती है जहाँ पे 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है. इज इट क्लियर? रीजंस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Now, the next is accounting treatment or settlement of accounts on dissolution of partnership firm. ठीक है, so कुछ accounting treatment है, yeah, we can say it's settlement of account है. ठीक है, तो whenever the a partnership of winds up, there are need of certain settlements of accounts. Okay, so few points are there and it's very important point. The first is when firm is dissolved, all assets are realized and the proceeds from it are to be paid for the liabilities of the partnership firm. ठीक है, जब फर्म डिसॉल्व होती है, जो भी एसेट्स होते हैं वो सब क्या किए जाते हैं, रियलाइज, विच मीन्स दे आर सेल्ड आउट, दे आर सोल्ड आउट. ओके, उनको सेल कर देते हैं, उनको बेच देते हैं, और जो भी पैसा मिलता है इट इज यूज टू पे द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो एसेट बेचने के बाद जो भी पैसा मिलता है, रियलाइज होता है, वो यूज करते हैं टू पे द liabilities of the partnership firm. According to Indian Partnership Act 1932, Section 48, the liabilities are paid as per the order given below. ठीक है, अब कैसे लाइबिलिटीज पे करना है, इसी ऑर्डर में लाइबिलिटीज पे करना है. सबसे पहले अगर लाइबिलिटी पे करने की बात होती है तो सबसे पहले जो पे करना है इट्स अ डिसोल्यूशन और वी कैन से रियलाइजेशन एक्सपेंस. ठीक है, तो रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंस सेम है. ठीक है, और ये अलग अलग वर्ड यूज करते हैं इन द प्रॉब्लम, तो आपको याद रखना है रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला हो या डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोला हो, दोनों का मतलब सेम ही है. ठीक है, सो इफ एनी रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज देयर, वो सबसे पहले पे करना है. ठीक है, सेकंड विल बी आउटसाइड लाइबिलिटीज. ठीक है, ऐसी कोई लाइबिलिटी है जो थर्ड पार्टी को पे करनी है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करना है, या बिल पे करना है, या कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, या लोन पे करना है, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. So these are the second one to whom the company has to pay the amount. Okay, so second liability क्या है, outside liabilities have to be paid. Third, after paying all outside liabilities, अगर कोई surplus cash बच रहा है, then जो पार्टनर्स लोन है वो पे करना है. ठीक है, जो पार्टनर्स लोन दिया जाएगा क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में, आपको वो पे करना है. और अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं बच रहा है तो इट विल बी एंटाइटल्ड टू शेयर प्रोपोर्शनेटली. तो जो भी शेयर जो भी बचेगा उसको प्रोपोर्शनेटली दे हैव टू टेक द अमाउंट. नेक्स्ट, इफ स्टिल सरप्लस कैश रिमेन्स, अगर आउटसाइड लायबिलिटीज पे कर दिया, पार्टनर्स लोन पे कर दिया, फिर भी अगर कोई सरप्लस कैश बच रहा है तो वो जो सरप्लस कैश है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनटू द पार्टनर्स कैपिटल. तो जो पार्टनर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ठीक है, नाउ हियर बिकॉज दिस इज अ डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन अगर हो रहा है तो और अगर तो 95% और 99% हमेशा लॉस ही आता है. ठीक है, क्या होता है, लॉस ही आता है, क्योंकि डिसोल्यूशन अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ज्यादातर वो डिसॉल्व होती है बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, जहाँ पे पार्टनर की लायबिलिटीज बढ़ जाती है या फर्म की लायबिलिटीज बढ़ जाती है एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द पार्टनर फॉर द फर्म टू पे द लायबिलिटी, इसलिए 99% जो आंसर आता है वो हमेशा लॉस ही होता है. ठीक है, इज इट क्लियर how you were going to pay the liabilities? ठीक है, तो अगर एसेट रियलाइज करने के बाद जो भी एसेट का पैसा मिलता है उससे आपको लायबिलिटी पे करना है, और कौन सी लायबिलिटीज पे करनी है. ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करना है, कोई लायबिलिटी जैसे सैलरी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जो लायबिलिटीज है ये पे करनी है. ठीक है, अगर उसके अलावा पार्टनर्स लोन है उसको पे करना है.
ठीक है, और अगर इन सबको पे करने के बाद कोई सरप्लस प्रॉफिट बचता है, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Now, the next is the accounting procedure. So there are two accounting procedures that you will going to learn in this chapter. The first is if the dissolution of partnership is a simple dissolution, and the second is if the dissolution of partnership is under insolvency situation. ठीक है, तो two types, two heads हैं. ठीक है, पहला है simple dissolution और दूसरा है dissolution under insolvency situations. तो ये दोनों आप सीखोगे in this chapter. The very first is simple dissolution. ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो सिंपल डिसोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हेड जो है, सो व्हाट इज सिंपल डिसोल्यूशन? नाउ व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म दे आर सॉल्वेंट एंड दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म ड्यू टू एनी रीजन, इट इज कॉल्ड एज सिंपल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो सिंपल डिसोल्यूशन के केस में जो भी पार्टनर्स है वो सारे पार्टनर्स सॉल्वेंट होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं because of any reason. ठीक है, that is called as simple dissolution. Is it clear? Now under simple dissolution, the partnership firm कौन से accounts open करने हैं आपको under the simple dissolution? If you will see, 5 accounts are there. सबसे पहला है realization account. ठीक है, कौन सा account है? Realization account है. ठीक है, second है partners capital account. सेकेंड अकाउंट आप बनाओगे वो क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. थर्ड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट. थर्ड क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट आपको कब बनाना है? इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट द कैपिटल इज अंडर फिक्स्ड मेथड. ठीक है, फिक्स्ड मेथड है, यानी कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रही है फर्म तो ही आपको पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने हैं. अगर नहीं इंफॉर्मेशन दिया है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रही है तो ओनली यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, या सिंपल बोलूं तो अगर क्वेश्चन में बोला है पार्टनर्स करंट अकाउंट, इंफॉर्मेशन दिया है तो पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल दोनों बनेगा. अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है करंट अकाउंट के बारे में कुछ भी तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट. ओके, अगर जरूरी है तो लोन अकाउंट बनाना और जरूरत नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड द लास्ट इज कैश और बैंक अकाउंट. ठीक है, तो बेसिकली 3 ही अकाउंट हम बनाते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट. ठीक है, यहाँ पे इन डिसोल्यूशन यू विल नॉट गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, आप कैश और बैंक अकाउंट बनाओगे और आपका कैश और बैंक अकाउंट का टोटल टैली होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी सेम, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. तो जैसे हमारा बैलेंस शीट टैली होता है, दोनों साइड का अमाउंट सेम होता है, यहाँ पे आपका कैश और बैंक अकाउंट जो है उसका जो टोटल है वो सेम आना चाहिए. अगर वो रॉन्ग आ रहा है, करेक्ट नहीं आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, विच मीन्स प्रॉब्लम इज नॉट करेक्ट. ओके, सो दीज आर द accounts that you will going to prepare in under the simple dissolution head. Okay, now everyone knows what is partners capital account, current account. ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट ये सब आपको पता है. तो जो अकाउंट आपके लिए न्यू है वो कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन अकाउंट. So while preparing realization account, what you have to do? You have to transfer all the sundry assets, ठीक है, and all the sundry liabilities. ये दोनों भी sundry assets और liabilities हैं, ये आपको transfer करना है in this realization account. ठीक है, so what is the purpose of this account? Realization account हम क्यों बनाते हैं? To show the profit or loss on realization. ठीक है, जो भी रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, सो रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू कैश. एसेट्स आर क्रेडिटेड एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड एंड दे आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट. ठीक है, तो जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं उसी के लिए ये अकाउंट होता है. ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर, सपोज कोई पार्टनर एसेट लेके गया, ठीक है, सपोज कोई पार्टनर मशीनरी लेके गया, ठीक है, तो व्हाट यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो यहाँ पे आप एसेट और लायबिलिटी के प्लेस में यू विल गोइंग टू यूज द वर्ड रियलाइजेशन. कौन सा वर्ड यूज करोगे? रियलाइजेशन. तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये बेसिकली इट इज रिफ्लेक्ट्स द
एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बेचा, पार्टनर एसेट लेके गया, या लायबिलिटी पे किया, ठीक है, या लायबिलिटी पार्टनर लेके गया, तो एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स है, उसका इफेक्ट आपको इस रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना है। ओके, next is partners capital account. So you know what is partners capital account? So it is the capital account of the partners where all the transactions which are related to the partners they have been recorded, जैसे opening balance हो गया, reserves हो गए, ठीक है, accumulated profit हो गया, accumulated loss हो गया, अगर कोई सैलरी है या कमीशन पे कर रहे हैं पार्टनर्स को, अगर कोई ड्राइंग है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस ये सब पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपन व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया जाता है, तब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो इन दिस in the problem it is given partners loan is given, then you have to pay the partners loan account, ठीक है। अब पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर आपको बनाना है तो यू कैन प्रिपेयर, अगर आपको नहीं बनाना है तो एक सिंपल सा वे है इसको रिकॉर्ड करने का, दैट आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू। एंड द लास्ट इज कैश एंड बैंक अकाउंट। तो जो कैश और बैंक अकाउंट में, इन दिस यू विल गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस वेयर विच आर रिलेटेड टू कैश और बैंक। तो अगर पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है या आप किसी को पे कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारे ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू कैश और बैंक, इट विल बी रिकॉर्डेड इन दिस कैश और बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? तो आपका जो मेन अकाउंट है जो आपको बनाना है वो क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर करंट का इन्फॉर्मेशन दिया है तो करंट बनाना है, तो ज्यादा जरूरत नहीं है बनाने की। और पार्टनर्स लोन भी हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, उसका एक ही एंट्री होता है जो पास करना होता है, इसलिए हम नहीं बनाते हैं क्योंकि वहां पे टाइम वेस्ट होता है। और लास्ट विल बी योर कैश और बैंक अकाउंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? Okay, so simple resolution in that these are the accounts that have to be prepared. Now the very important point, that are the journal entries of dissolution. तो बहुत सारी journal entries है dissolution में, ठीक है। Now in the question, the way in the admission, they will going to ask the journal entries or the ledger. तो आपको journal entries पूछ सकते हैं या ledger, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको दोनों प्रिपेयर्ड होके जाना है। You have to try to solve the dissolution, journal entries of dissolution, and even you have to solve the ledger, ठीक है। तो दोनों आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो आई वांट एवरीवन टू राइट दिस जर्नल एंट्रीज एज, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैसे आप ये जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते जाओ। So it's very important journal entries for you. Now the very first entry that you will going to record is the transfer of assets to realization account, ठीक है। तो जो भी assets आपको बैलेंस शीट में दिए जाएंगे वो सारे के सारे assets आपको क्या करना है, you have to transfer except the cash और बैंक, ठीक है। कैश और बैंक छोड़ के जितने भी assets हैं वो सारे के सारे assets आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दैट? इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू assets account। एंट्री क्या है? realization account debit to assets account, being transfer of various assets at book value to realization account, ठीक है। transfer of various assets at book value to realization account. Is it clear? First entry, transfer of assets to realization account. Second है ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको जो भी लाइबिलिटीज दी जाएगी, जैसे क्रेडिटर्स है या आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है या बिल्स पेएबल दिया है, तो ये जो लाइबिलिटीज है, these are the liabilities you will going to record, you will going to transfer it to the realization account. तो एंट्री क्या होगी इन दैट केस? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट
to realization account. Is it clear? So these are the two entries. पहला आप ट्रांसफर करोगे जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, और सेकंड आप जो ट्रांसफर करोगे जो भी लायबिलिटीज है, दोनों भी आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में at book value. Now the third it will be the transfer of provisions to realization account. तो जो भी provisions ये हैं जैसे RDD हो गया या provision for discount है या provision for depreciation है, अगर कोई contingency reserve दिया है या joint life policy reserve दिया है या investment fluctuation fund इसका information दिया है, तो these are the provisions जो आप क्या करोगे, you will going to transfer it to the realization account. ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादातर जो फर्स्ट प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ, यानी कि जो आरडीडी है यही दिया जाता है, ठीक है, या तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये दिया जाता है, ठीक है, ज्यादातर ये दो ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है। पर आपको याद रखना है कि ये जो प्रोविजन है ये आपको ट्रांसफर करने हैं, कहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, बीइंग ट्रांसफर ऑफ वेरियस प्रोविजंस टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, now the next is transfer of accumulated profit और reserves। तो अगर कोई accumulated profit जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर वो आपको दिया गया है ऑन द लायबिलिटी साइड, ठीक है, या जनरल रिजर्व दिया गया है या रिजर्व फंड दिया गया है, तो these are the accumulated profits, these are the reserves that you will going to transfer it to partners capital account। कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो you will going to divide it among the partners, ठीक है, जो भी पार्टनर्स है उनको डिवाइड करोगे as per the ratio which is given in the problem, ठीक है, being transfer of accumulated profit or reserves to partners capital account। The next is transfer of accumulated loss। अगर ये जो accumulated loss है जैसे ये partners profit and loss account अगर ये asset side में दिया है या कोई advertisement suspense account asset side में दिया है, तो these are all your accumulated loss। और इसको आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, you are going to record it in partners capital account के डेबिट साइड में, ठीक है। तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to accumulated loss, partners capital account debit to accumulated loss account, being transfer of accumulated loss to partners capital account। ओके, सो दीज आर द ट्रांसफर की एंट्री। अगर आप देखोगे तो इसमें सब हमने ट्रांसफर किया है, एसेट्स और लायबिलिटीज हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन अगर कोई है तो वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस है तो आप पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। इज इट क्लियर? ऑल द 5 एंट्रीज आर क्लियर टू यू? दीज आर रिलेटेड टू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन और एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। I hope everyone is writing these entries and these are the sequence. This is the sequence that you will going to follow in your exam also. आप अपने एग्जाम में भी ये सेम सीक्वेंस फॉलो करोगे while you are solving a problem. Okay, then we can proceed further then. Now the next is if assets are sold out or realized. Okay, so if the assets are realized or we can say if the assets are sold out, so what will be the entry? अगर मैं एसेट बेच रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग assets are sold or realized, being assets are sold or realized। Next, if assets are taken over by partner, assets बेच नहीं रही हूँ, asset partner लेके जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी, it will be partners capital और current account debit to realization account। क्या एंट्री होगी, partners capital और current account debit to realization account, being assets are taken over by partner। ठीक है, तो दोनों में देखोगे तो आप एक ही डिफरेंस है, डेबिट का डिफरेंस है। अगर कैश में बेच रहे हैं तो कैश आ रहा है, अगर पार्टनर्स लेके जा रहा है तो पार्टनर्स को डेबिट किया है, जबकि क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एसेट अगर बेच रही हो तो कैश आएगा, और अगर पार्टनर्स लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट मेंशन करना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज टू आउटसाइडर्स। ठीक है, अगर लायबिलिटी पे कर रहे हैं आप आउटसाइडर्स को और कैश में पे कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी योर एंट्री? इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्योंकि लायबिलिटी पे कर रही हूँ तो मेरा कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग आउटसाइडर्स लायबिलिटी पेड, बीइंग आउटसाइडर्स लायबिलिटीज पेड। ओके, अगर कोई पार्टनर डिस्चार्ज कर रहा है लायबिलिटी, यानी अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है लायबिलिटी, पे कर रहा है लायबिलिटी, तो एंट्री क्या होगी? इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बीइंग लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, तो जो लायबिलिटी है वो पार्टनर लेके जा रहा है, बीइंग लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री लायबिलिटी से रिलेटेड है, कैश में पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और अगर पार्टनर डिस्चार्ज कर रहा है यानी पार्टनर लायबिलिटी लेके जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी? इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। Now the next is realization expenses paid by firm in cash या realization expense paid by partner। ठीक है, तो दो एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड। अगर फर्म पे कर रही है, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। ठीक है, एक्सपेंस है तो ऑब्वियस है कैश जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस नहीं आएगा, तो इट विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री किससे रिलेटेड है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। इज इट क्लियर? Now the next entry is if commission is given to any partner for realizing asset। अगर कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, ठीक है, for realizing asset यानी एसेट के लिए अगर कोई कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, तो what will be the entry? It will be realization account debit to partners capital और current account। एंट्री क्या होगी? realization account debit to partners capital और current account being commission paid for realizing the asset। एसेट बेचने में मदद की है इसलिए कमीशन पे किया है किसको? पार्टनर को। ओके, नेक्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर्स लोन जो होता है वो पे करते हैं, ठीक है, दैट व्हाट इज द एंट्री? इट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री क्या है? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग पार्टनर्स लोन पेड। जो पार्टनर का लोन है वो क्या किया? पे किया, राइट? तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो चारों एंट्री है इट इज रिलेटेड टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ओके, एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है, इफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट इज देयर एंड इफ इट्स सोल्ड आउट, ठीक है, व्हाट विल बी योर एंट्री? इट विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो जो हमने देखा ना एसेट बेचने की एंट्री, और वही सेम एंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो एसेट है वो अनरिकॉर्डेड है। इफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड, still the entry will be same, it will be cash or bank account debit to realization account being unrecorded assets realized। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है और उसको पार्टनर लेके जा रहा है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है,
Similarly, if any unrecorded liabilities are paid off by partner, ठीक है, अगर कोई unrecorded liabilities है और उसको पार्टनर पे कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है, यानी उसके पास से पैसे जाएंगे, तो इट विल बी टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी paid off by partner. Similarly, if any unrecorded liabilities are paid by firm, तो कैश में पे कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड ऑफ बाय द फर्म। ठीक है, जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है वो पे किया है, किसने पे किया है? फर्म ने पे किया। ठीक है, तो दीज आर द 4 एंट्रीज व्हिच आर रिलेटेड टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड liabilities. Now the next is the transfer of profit on realization account and the transfer of loss on realization account. तो अगर realization account close किया है मैंने और मुझे profit हो रहा है तो वो आपको किसको ट्रांसफर करना है? You have to transfer it to the partner's capital account. So in that case आपकी एंट्री क्या है? realization account debit to partner's capital और current account. ठीक है, तो जितने पार्टनर्स हैं उन सभी में डिवाइड होगा, इसलिए ऑल लिखा है यहाँ पे। So realization account debit to all partners capital or current account, being profit on realization transferred to partners capital और current account. ठीक है, जो भी प्रॉफिट है रियलाइजेशन का वो ट्रांसफर किया है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। नेक्स्ट, इफ देयर इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, तो वो भी आपको पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? Profit on realization and loss on realization, both you have to transfer it to partners capital or current account. Now the next and the last two entry is, as the capital account of the partner shows a debit balance, partner should bring in cash to settle his account with the firm. ठीक है, तो अगर पार्टनर्स कैपिटल आप क्लोज करोगे, अगर पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, विच मीन्स द पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? पार्टनर हैज टू ब्रिंग कैश। ठीक है, उसको कैश लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो अपना अकाउंट सेटल कर सके इन द फर्म। तो इन दैट केस व्हाट विल बी द एंट्री? इट विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कैश पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर कैश पे कर रहे हैं पार्टनर को to settle the capital account, so what will be the entry? It will be partners capital account debit to cash or bank account. ठीक है, partners capital account debit to cash or bank account, being amount due to partners paid as final settlement. क्योंकि डिसॉल्व हो रही है फर्म तो एक फाइनल पेमेंट करना पड़ेगा पार्टनर को। एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, being amount due to partners paid as final settlement. Okay, so these are the last two entries. जैसे आपकी एंट्री पास हो जाएगी वैसे आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। Okay, so only few entries are there as you can see, and these entries you have to by heart. ठीक है, क्योंकि in the exam with the ledger they can ask journal entries or only they can ask journal entries or only they can ask ledger. ठीक है, तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, so you have to be prepared yourself for that. Is these journal entries are clear to everyone? I hope everyone has noted it out, this down. Okay, so I hope everything is clear to you. What is meant by dissolution? So whenever the partnership firm comes to an end, okay, it is called as dissolution of partnership firm. Then we have saw what are the reasons for dissolution.
Okay, and then we have saw the heads under two heads. Okay, first is the simple dissolution, and the second is dissolution under insolvency. Okay, that we're going to next learn next. First, we're going to started with the simple dissolution. जब partners solvent होते हैं और firm dissolve होता है because of any reason, it is simple dissolution. Three accounts you have to prepare: realization account, partners capital account, and if current account information is given, then partners current account and cash or bank account. Okay. So in the next lecture, we will going to start with the practical problem of this chapter. So till then, goodbye.